کیا دیکھا آپ نے؟ خون ہی خون. لوگ کون ہیں آپ لوگوں کے؟ کوئی رشتہ دار ہیں؟ رشتہ دار بھی لگتے ہیں. آپس میں اختلافات بھی ہیں؟ ہاں جی. انکل ان لوگوں نے میری زندگی برباد کر دی، انہیں پھانسی دی. سب سے پہلے میں والدہ سے بات کروں گی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سگرا. سگرا. سگرا بی بی، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 7. یہ سب سے چھوٹی ہے ہیرا رانی؟ جی. اچھا، تو سب سے چھوٹا بچہ تو ماں کو بہت پیارا ہوتا ہے جی. تو آپ تو ہر وقت اسے ساتھ ساتھ رکھتی تھیں، تو اس دن آپ نے ہیرا کو اکیلے نکال دیا تھا گھر سے باہر، کیا ہوا تھا؟ اچھا جونا کاٹنے گیا تھا. اچھا، فصل کاٹنے گئی؟ ہاں جی. اچھا، پھر جس ٹائم گھر آئے ہیں چیخا نکلی نہ سی بھر کے باہر نکلے ویکھے منڈے نس گئے. کیا دیکھا آپ نے؟ خون ہی خون. خون دیکھا؟ کہاں؟ پاؤں پہ. پاؤں پہ؟ جسم سے سب. جسم سے خون بہ رہا تھا؟ ہاں. پھر بچی آپ کی ہوش میں تھی بے ہوش تھی؟ تھوڑی تھوڑی ہوش میں سے. تھوڑی تھوڑی ہوش میں ہاں. تھی. آپ کی بچی کہاں پڑی ہوئی تھی اسے؟ بازار میں. پھر رولا پایا کسی نے بھی نہیں سنی. پھر میں کلی آ گئی ہوں اتنے. کہاں؟ اتنے تھانے وچ. اچھا. ہاں جی. ہاسپٹل لے کے نہیں گئی بچی کو؟ نہیں، وہ صبح لے کے گئے ہیں. لے کے گئی ہیں. ڈاکٹر نے کیا کہا آپ کی بچی کو؟ کیا ظلم ہوا؟ ظلم ہوا؟ جی. آپ پہچانتی ہیں ان لوگوں کو؟ ہاں. ظاہر ہے آپ ماں ہیں، آپ سے میں کچھ پنجابی سپیکنگ ہیں، اردو کم بول سکتی ہیں. جتنی ان کی ہمت تھی، بساط تھی، انہوں نے بولی. اور جو انہوں نے دیکھا، خون میں لت پت اپنی تڑپتی ہوئی بچی، نیم بے ہوش حالت میں، 6 سال کی بچی. شاید اتنی معصوم بچی پہ تو ویسے راہگیر کو بھی پیار آ جائے. وہ تو پھر شاید ان کے اپنے علاقے کے محلے دار تھے یا ان کے جاننے والے تھے. تو میں حیران ہوں کہ ان کو معصوم سی بچی پر پیار نہ آیا. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے کچھ واقعات ٹی وی میڈیا پر دیکھے، لیکن یہ لوگ اویئرنیس لینے کی بجائے، ان واقعات سے سیکھنے کی بجائے ان کو دہراتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ہم آگے پروگرام میں بات کریں گے. اس بچی کا بھائی موجود ہے، میں کوشش کروں گی کہ اردو میں اس سے بات کر سکیں. کیا نام ہے آپ کا؟ علی حیدر. علی حیدر. علی حیدر، یہ واقعہ جس دن پیش آیا، آپ اس دن گاؤں میں ہی تھے؟ نہیں جی، میں لاہور میں کام کرتا ہوں. اچھا، یہ تھا معاملہ کیا تھا سارا؟ جی مجھے فون گیا تھا، میں ادھر کام کر رہا تھا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے. تو میں وہاں سے بھاگا. تقریباً 1 بجے یہ ادھر تھانے میں آیا تو ملزم نہیں پکڑا گیا تھا. اسپتال کتنی دیر رہی آپ کی بچی؟ ہسپتال نہیں لے کر گئے، یہاں پر ہی تھے. تھانے والوں نے یہاں موجود رکھا ان کو. اچھا، ٹھیک ہے. ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے، تو وہ اس حالت میں خون میں لت پت بچی آپ کی یہاں جی رہی؟ جی، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے ریٹ کروائی، ان کو پکڑا. آپ لوگ سب پولیس کوآپریٹ کر رہی ہے؟ جی کر رہی ہے سپورٹ. آپ کر رہی ہے؟ جی. اچھا، وہ لوگ کون ہیں آپ لوگوں کے؟ کوئی رشتہ دار ہیں؟ رشتہ دار بھی لگتے ہیں، تقریباً نزدیک کے نہیں ہیں جی. کوئی دشمنی تھی آپ لوگ؟ نہیں جی، کوئی دشمنی تھی. کوئی لین دین کا تنازع تھا؟ نہیں جی، کوئی رشتے نہیں. کا معاملہ تھا؟ کوئی نہیں. آپ لوگوں کو پتہ کیسے چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے خلاف پرچہ کٹا ہے؟ جی یہ بچی نے خود بتایا جی. خود نشاندہی کی؟ جی. کتنی دیر کے بعد نشاندہی کی؟ یہ جی میری ماں نے پوچھا، اس نے بتایا کہ جو ملزم بڑا ہے انصر علی، اس کے میں گھر میں ٹی وی دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے. اچھا. یہ پہلے بھی جاتی ہے ان کے گھر میں. اچھا. تو اس نے مجھے پیسے دیے، یہ 2 انڈے لے آؤ، 1 پتی لے آؤ. ٹھیک ہے، 10 روپے تم خود رکھ لینا. بچی گئی ہے، وہاں سے لے کر آئی ہے. اس کو بولا ہے، اس نے بھی چلو گھر میں چلے جاؤ. وہ گھر گئی ہے، پھر آئی ہے روٹی کھا کر. اللہ دیتا تھا، اس نے ہاتھ سے پکڑا اس کو، وہ بیٹھک میں لے کر گیا. انصر علی نے کی ہے جی. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ جب یہ بڑا تھا جو انصر علی کی بچی چیخی چلائی. ٹھیک ہے. جن کا گھر تھا وہ اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے یا گھر میں موجود نہیں تھے، اس کا ہم کو نہیں پتا. تو بچی کو اس نے چھوڑا، وہ بھی بھاگ گیا. دونوں ملزم بھاگ گئے. ٹھیک. ناظرین، میڈیکل ہو چکا ہے. میڈیکل میں کیا ایویڈنس سامنے آیا ہے، پولیس نے ابھی تک کتنی کارروائی کی ہے، یہ تو ہم آگے چل کے پروگرام میں دکھائیں گے. اس وقت متاثرہ بچی موجود ہے کیونکہ بچی کی نشاندہی پر ملزمان اریسٹ ہوئے. اس بچی پر کیا گزری، وہ معصوم اندر سے سہم گئی. اس کی زندگی اب کیسے گزرے گی یہ تو خدا جانے کہ اسے کیسے کیسے اب ہمت آئے گی، لیکن اس وقت اس پر بیتی کیا تھی یہ اسی سے سنتے ہیں.
उन्हें पहचान लोगी जिन्होंने ये सब किया आपके साथ हैं? सामने आएंगे तो डरोगी तो नहीं हैं? आंदा इस तरह घर से बाहर अकेले जाओगे आप? नहीं जाओगे, क्यों? क्यों नहीं जाओगे? अभी ये मेरी मम्मा ने कहा। मम्मा ने कहा। अच्छा, आप पढ़ते भी हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 1 क्लास में पढ़ते हो। अच्छा, तो क्या बनना है आगे बड़े होके? फौज में। फौज में जाना है हिरा ने? अभी भी इरादा है फौज में जाने का? डर तो नहीं गए इस शरारत से? हाँ। तो फिर डर के ऐसे तो नहीं होगा कहोगे मैंने फौज में नहीं जाना? ऐसे तो नहीं करोगे? जाओगे फौज में? हैं? पक्का? डरना नहीं है। अच्छा, उनको पुलिस बहुत मारेगी, ठीक है? उनको पकड़ के लाएंगे जहाँ जहाँ मुँह पे हैं। वो जो जज साहब है ना, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो उनको बहुत बुरी सजा देंगे। अच्छा, आपने डरना नहीं है, ठीक है? नहीं डरोगे ना? नहीं। जस्टिस साहब को क्या कहोगी आप? जज अंकल, इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इन्हें फांसी दे। हाल ही में इमरान को भी फांसी हुई। ज़ैनब के कातिल को जिंदगी हारना ही पड़ी, लेकिन क्यों? एक के बाद एक परवान चढ़ता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी भी अपील है, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो ऐसी नन्ही कलियों को मसलने वाले, ऐसे दरिंदे जो इन मासूम बच्चियों को रोन देते हैं और फिर जिंदगी भर इनके करैक्टर पे, इनके ऊपर एक माशरे में दाग बन जाती है वो चीज। खुदारा सख्त से सख्त इनको सजाएं दी जाएं ताकि इन्हें एहसास हो कि ये क्या गुनाह करते हैं। मैं इसे गलती नहीं कहूंगी, मैं इसे गुनाह कहूंगी। और गलती की माफी शायद कहीं हो, गुनाह की माफी ना आखिरत में होगी और ना यहाँ होनी चाहिए। तो इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं, तफ्तीश का रुख शायद अभी वहां तक पहुंचा भी ना हो जहां से चीजें हमने आज ढूंढ निकाली। क्या दुश्मनी थी उस मासूम बच्ची या उसके वालिदैन से कि इस नहज पे ले आया ये उन लोगों को? इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अंसर इकबाल। अंसर इकबाल। उम्र कितनी है? 18 साल। 18 साल। स्कूल गए थे कभी? गए थे। कहाँ तक पढ़े हुए हो? 6। अच्छा, 6वीं क्लास से क्यों छोड़ दिया? बस ट्रक चलाने का शौक था इसलिए छोड़ अब दिया। ट्रक ड्राइवर हो? हाँ जी। कितने अरसे से चला रहे हो? तकरीबन कैलेंडरी वाल सीखा 2 साल से और 6 महीने में अपनी ड्राइवरी कर रहा हूँ। लॉन्ग रूट पे चलाते हो? हाँ जी। अच्छा, कितना कमा लेते हो? तकरीबन 12-13 हज़ार में। शादीशुदा हो? नहीं। बहन भाई कितने हैं? 2 बहनें हैं, 3 भाई हैं। सबसे बड़े? सबसे बड़ा हूँ। मेरे से बड़ी एक मेरी बहन है। अच्छा, घर में बहनें हैं ना? हाँ जी हैं। तो किसी की बेटी की इज्जत या किसी की बहन की इज्जत क्यों रोली? मैंने ये नहीं किया। तुमने नहीं किया? नहीं किया। फिर सोच लो। मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। फिर सोच लो। मैंने नहीं किया। होशो हवास में कह रहे हो? हाँ जी, होशो हवास में कह रहा हूँ। और अगर साबित कर दिया जाए तो? मैंने नहीं किया, साबित हो ही नहीं सकता। क्यों इतने यकीन से कह रहे हो? हाँ जी, मैं इतने पक्का यकीन से कह रहा हूँ। कैसे यकीन से कह रहे हो? मैं अपने यकीन से कह रहा क्यों, हूँ। कोई सबूत नहीं छोड़ा था वहाँ पे? मैंने किया ही नहीं, फिर सबूत का क्या मतलब? मैंने नहीं किया। अच्छा, और अगर किया हुआ तो? मैंने नहीं किया। नहीं किया? नहीं किया। तुम हवासे खमसा में अपने होशो हवास में ये कह रहे हो कि तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। जानते हो उस बच्ची को? हाँ जी, वो बच्ची हमारे गाँव की है। अच्छा, कितने साल की है तो पता होगा? 6 या 7 साल की बच्ची है। अच्छा, तुम्हारे साथ तुम्हारे घर आती जाती भी है? आती जाती है। क्या करने आती है? टीवी देखती है। अच्छा, टीवी देखने आती है। उस दिन भी आई हुई थी? उस दिन भी आई थी। अच्छा, घर में कौन कौन था? घर में मैं था और मेरी बहन थी और वो थी। कौन वो बच्ची थी। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम घर में तो रानी लेते हैं, लेकिन मुझे भी रानी के नाम का ही पता है। रानी के नाम। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ मैंने आपको बता दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तुम्हारे वालिदैन के ताल्लुकात कैसे हैं उस बच्ची के वालिदैन के साथ? वो बच्ची के वालिदैन से मेरे बाप का रिश्ता नहीं, मेरा बाप का रिश्ता है उस बच्ची की माँ से। वो बच्ची की माँ मेरे बाप की कज़न लगती है। कज़न लगती है? हाँ जी। कोई आपस में इख्तिलाफात भी हैं? हाँ जी, कोई आपस में रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी के अलावा कोई आपस में लड़ाई झगड़ा भी है? लड़ाई झगड़ा नहीं है। नहीं है? नहीं है। अच्छे ताल्लुकात हैं? अच्छे तल्लुकात है। तुम फिर सोच लो कि तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। ज़हनी तौर पे मुतमईन हो? ओके, ज़हनी तौर पे मैं और अगर ये साबित हो जाए तो सजा के लिए तैयार हो? तैयार। तैयार हो?
तुम्हारा उस बच्ची के साथ या उस बच्ची के वालिदैन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, तुम्हारी ज़ाती तौर पे कोई दुश्मनी, कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कोई मसला, लेन देन का तनाज़ा, कोई भी, पैसों का मसला, कोई मसला, कोई रिश्ते की लड़ाई, कोई मसला, कोई तुम लोगों के आपस में ज़मीन का जायदाद का मसला, ऐसा कोई मसला नहीं, कोई ऐसा मसला कोई मसला नहीं। और फिर भी तुमने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, ये तुम कह रहे हो? कुछ नहीं किया, मैं कह रहा हूँ। ये सजा के लिए तैयार हो अगर साबित हो जाता है? तैयार। ठीक। नाज़रीन, ये तो बहुत मुतमईन है कि इसने उस बच्ची के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि अयूब साहब और इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम और हम लोग टीम पुकार हमने मिलकर एफर्ट्स की, सिर्फ इसकी बात पर यकीन किया जाए तो ये बहुत मासूम है, लेकिन असल हक़ाइक़ कुछ और हैं। और इस शख्स ने जिस तरह से दरिंदगी ढाई, जिस तरह से वो सब कुछ किया, हमारी अपनी भी कुछ रैकी थी, हमारा अपना होमवर्क था, इन्वेस्टिगेशन की टीम और ये सब लोग यहाँ पे जांबाज सिपाही मौजूद थे जिन्होंने मिलकर सारी एफर्ट्स की और उसके बाद हम नतीजे तक पहुँचे। अयूब साहब, मेरा ख्याल है वो प्लान फिर पूरा कर लें जो हमने प्लानिंग की है इसको साबित करने के लिए, क्योंकि ये तो मान नहीं रहा, तो मेरा ख्याल है हम कर लेते हैं फिर। आज बेटा आज नीचे इधर देखो, ये इतने सारे अंकल खड़े हुए हैं ना, इनमें से कौन सा जिसने शरारत की थी आपके साथ? कौन सा? आगे जाके बताओ मुझे, कौन से वाला? ये? और बाकियों में से कोई है? इधर देख के बताओ, इधर से, इनमें से देख के बताओ, कोई है बाकियों में से? और बस ये और बाकियों में से ये है, यही है बस? ये वो भी है, वो भी है? अच्छा चलो, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना। नाज़रीन, इस मासूम सी बच्ची ने तो निशानदेही कर दी है, आप इसे ले जाएं क्योंकि ये पहले सहमी हुई है, ज़्यादा ना सहम जाए, इसको ले जाएं उठा के आप यहाँ से। उस बच्ची ने तुम्हें पहचान लिया ना? इतने लोग और खड़े थे यहाँ पे, किसी को नहीं उसने पॉइंट आउट किया, तुम्हें पॉइंट आउट कर दिया है, पहचान लिया कि तुमने सब कुछ किया। अभी भी वक्त है, मान जाओ। ना बताऊँ तो? ये तो भी एक बच्ची थी, हमने एक और हुक्म का इक्का रखा हुआ है, हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है सच्चाई सामने लाने के लिए। सच आज सामने लाएंगे और जब वो तरीका मैंने इख्तियार किया या सामने आई चीज, फिर तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब मैंने किया ही नहीं, मैं मानूं कैसे? नहीं मान रहे? नहीं मानूं। खौफ खुदा भी नहीं है दिल में? बेशक है, लेकिन मैंने किया नहीं। नहीं किया? नहीं किया। अभी भी तुम बज़िद हो इस बात पे। मैंने किया ही नहीं, मैं कैसे मान लूं? सोशल मीडिया पे देखने वाले लोग भी तुम्हें लान तान कर रहे होंगे कि इसको काट दो, मार दो, अभी भी कमेंट्स लोगों के नीचे चल रहे होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो अभी भी कहीं पर भी इंसानियत नहीं आई। मैंने किया ही नहीं, मैं इंसान हूँ, मैंने नहीं किया। मैं आपसे कैसे कहूँ मैंने किया? मैंने यूं चलो किया। ठीक है, मैं इसको साबित करती हूँ, क्योंकि बच्ची ने पॉइंट आउट किया था यहाँ पर कमरे में एक और इंसान को भी, वो बच्चा है और उसका सारा किरदार क्या था कि इस केस में वो बच्चा आई विटनेस था और कहीं ना कहीं इसका साथी था और पहरेदार था उस कमरे के बाहर, उस जाए वकुआ के बाहर जहाँ पर ये बर्बरियत ढाई गई। सजा क्या होनी चाहिए तुम्हारी? तुमने कहा था मैं कबूल करूंगा सजा। सजा ये है जो कानून देगा वो अब बर्दाश्त करेंगे। कानून के मुताबिक सजा कबूल है? कबूल है। कबूल है। नाज़रीन, ये बहुत शातिर मुल्ज़िम है और बहुत ही मुतमईन है, अभी भी ये अपने किए पे शर्मिंदा नहीं, बस पकड़े जाने पे थोड़ा सा खफा है और इसकी फैमिली प्रेशर डाल रही है उस मुद्दई फैमिली पे, वो मुतासिरा मासूम बच्ची जिसका कल क्या होगा वो शायद ये नहीं जानता या इसके घर वालों को एहसास नहीं है। वो गांव के सादा लोग, माँ बाप जो कि बुजुर्ग हैं और उनकी बच्ची वो सबसे छोटी है घर में, अब उस बच्ची के साथ क्या होगा, जिंदगी भर वो कैसे जिएगी, ये तो बहुत अलग बात है। असल में अब ये मामला चूंकि खुल चुका है और ये गुत्थी काफ़ी हद तक सुलझ चुकी है, विटनेस भी सामने आ चुके हैं, बच्ची ने भी पॉइंट आउट कर लिया है और मेडिकल के लिए सैंपल्स भेजे जा चुके हैं।